today's subject is absolutely different. Actually, if you see, the constipation is not any disease according to the medical science. Medical science says constipation is not a disease. But the constipation is highly responsible to create so many diseases in the body. You may agree with me. Like indigestion, acidity, fissure, fistula, piles, and even up to cancer and heart disease can be, you can be suffer from the heart disease and the cancer due to the constipation. I have seen so many heart patients in my life during last 15 and 16 years. Not less than 3,000 heart patients I have seen in my kutir. More than 50% patients agree that they were having the constipation right from their childhood. इसका मतलब ये हुआ कि बद्ध कोष्ठता यानी कि कॉन्स्टिपेशन अगर आपको किसी को है तो यू शुड बी अलर्ट. लेकिन to get the relief from the constipation, there are so many ways in the medical science, in the Ayurveda and in homeopathy and at so many pathies. But I will suggest, don't use any churna or any lactation or any medicine for your constipation problem, because that will make your constipation problem more critical in future. So you just try to understand the very simple and home remedies for this problem. In my today's speech, I will give some examples and some tips for get the release from this problem. According to my observation, more than 50% people in Mumbai are suffering from the constipation. More than 50% people. If you are taking any churna, or if you are taking any tea or coffee before going to the toilet, or if you are smoking, habituated to smoke before going to the toilet, it means that you are having the constipation. If you have to bring the pressure to release your tools, it means you have the constipation. सुबह मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो पहला काम हम टॉयलेट को जाने का करते हैं, राइट? अकॉर्डिंग टू माय गुरु, दैट इज निकम गुरुजी, ही वाज सेइंग कि आपको सुबह का जो मल है, जो शौच है, वो इतनी आसान होनी चाहिए जैसे गाय गोबर डालती है. यू नो, गाय गोबर, अभी तो बॉम्बे में तो हमको दिखता नहीं है, बट अदरवाइज आप विलेजेस में जाएंगे, रूरल एरिया में जाएंगे तो आपको गाय दिखाई देगी. और गाय जितना गोबर डालने में टाइम लगाती है ना, जितना इजीली डालती है, उतना ही इजी हमको सुबह जो है वो मोशन हो जाना चाहिए. देन वी कैन से यू डोंट हैव द कॉन्स्टिपेशन. बट लाइक दैट वेरी फ्यू पीपल आर देयर. टुडे वी विल सी सम रेमेडीज फॉर दैट. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल रेमेडी, दैट इज द वाटर थेरेपी. Under water therapy, one and quarter liter water early in the morning. जब आप सुबह उठते हैं तो immediately, without brushing your teeth, you have to drink 1.25 liter water. 1.25 liter means approximately 4 to 5 glass. 4 to 5 glass drinking water you have to drink immediately after wake up. Why without brushing? Yeah, I will tell you. Poison kills to poison. That you know very well. Poison kills to poison. सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे मुंह में जो सलाइवा होती है उसमें पॉइजन होता है, क्योंकि रात भर आप नींद में रहते हैं और उसमें पॉइजन जो है वो जमा होता है. और जब आप उसी के साथ पानी के साथ उसको अंदर डालते हैं तो दैट विल किल द पॉइजन इनसाइड योर बॉडी. ऐसा कहते हैं.
अकॉर्डिंग टू द वाटर थेरेपी, उनका कहना है कि जब आप बासी मुंह से पानी पीते हैं तो वो जो पॉइजन आपके मुंह में होता है, सलाइवा जो होती है, वो जब पेट में जाती है तो दैट विल हेल्प योर बॉडी टू गेट सम प्रिवेंट सम डिसीजेज इन द बॉडी एंड टू क्योर सम डिसीजेज इन द बॉडी। तो ये 1.25 लीटर पानी जब आप पीते हैं तो आफ्टर फ्यू मिनट्स, आफ्टर 5 or 10 minutes, you will get some pressure, and then if you will go to the toilet, you will get so many benefits with the help of 1.25 liter water, means 1.25 liter water. पानी के बाद चाय पी सकते हैं? Not immediately. I will explain you. 1.25 लीटर पानी पीने के बाद में up to 40-45 minutes you cannot take anything, neither tea, coffee or any breakfast or nothing, but other activities you can do. जैसा आपको अगर लगता है कि थोड़ा सा वॉकिंग करके आएंगे तो यू कैन गो फॉर अ वॉक 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि ज्यादा दूर मत जाइएगा, अदरवाइज बीच में प्रेशर आ गया तो आपको मुश्किल हो जाएगा. यू गो फॉर 5-10 मिनट्स वॉक, इमीडिएटली यू विल. और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको प्रेशर नहीं आता है तो इट इज बेटर टू गो फॉर द वॉक. आपके नीचे अगर गार्डन कोई है या कोई ऐसा राउंड वॉकिंग ट्रैक है तो उसके ऊपर 1-2 आप राउंड लगा लीजिए, सो यू विल गेट द प्रेशर. और बाद में आप टॉयलेट जाते हैं तो आपको ड्रिंक्स जो है बहुत आसानी से निकल जाएगी. नो, आई विल एक्सप्लेन द एंटायर थिंग. ये किसको किसको नहीं करना है? द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द हार्ट डिसीज, जिसको हार्ट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, दे विल नॉट डू दिस. उसके बाद में किडनी का फंक्शनिंग अगर वीक है, किडनी अगर का फंक्शनिंग कम है, जैसे कि सीरम क्रिएटिनाइन इंक्रीज होने की वजह से फंक्शनिंग कम हो जाता है किडनी का, ऐसे केस में भी आपको ये पानी नहीं पीना. उसके बाद में अगर डॉक्टर हैज सजेस्टेड यू नॉट टू ड्रिंक द एम्पल वाटर एट ए टाइम, दैट पर्सन आल्सो विल नॉट ड्रिंक दिस वाटर 1.25 लीटर. ठीक है ना? Level of creatinine, when you say kidney weakness, what should be the creatinine level threshold above which then you should not use this water therapy? No, actually 1.5 is the maximum serum creatinine, but up to 2.5 is all right, no problem. But if it is 3 or more than 3, then you must be alert. Okay? What's that reading there? No, he is asking that creatinine level, if it is up to 1.5 is the maximum, means 0.5 to 1.5 is the ratio, and if it is increased, say up to 2.5 also, it is all right, you can drink the water. But if it is 3 or more than 3, that serum creatinine, then you have to stop the drinking the more water, because it means that your kidney is affected due to that creatinine, serum creatinine. You know that serum creatinine is the blood that level ratio. Ratio is maximum 1.5, minimum of 0.5, maximum 1.5. So, and Jalodhar is also the disease, if you know, if you heard Jalodhar. Jalodhar disease एक होता है बॉडी में, मतलब खून का पानी हो जाता है उसमें. कोई तो भी सर्टन पोर्शन में, बॉडी के पोर्शन में ब्लड का पानी हो जाता है, उसको जलोदर कहते हैं, पर्टिकुलरली इन द एब्डोमिनल और इन द चेस्ट. तो ऐसा डिसीज अगर किसी को है तो सच पर्सन आल्सो इज नॉट सपोज टू ड्रिंक द एम्पल वाटर एट ए टाइम. ओके? ये जो वाटर थेरेपी है, इसके अंदर एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि इफ पॉसिबल, पहले दिन आप ये पानी जो है ये कॉपर के बर्तन में भर के रखिए. कॉपर यानी कि तांबे का जो बर्तन होता है, रेड पॉट, उसके अंदर अगर आप रात को पानी भर के रखेंगे ड्रिंकिंग वाटर, तो दैट विल बी मोर यूजफुल. क्योंकि क्लाइमेट में जो इलेक्ट्रिक पावर्स वेव्स जो होती है, वो तांबे का बर्तन उसको एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग द होल नाइट, और वो पानी में उसका इफेक्ट होता है. तो ऐसा पानी पीना ये हेल्थ के लिए ज्यादा यूजफुल होता है. दैट इज माई ओन एक्सपीरियंस. तो आप याद रखिएगा 1.25 लीटर पानी किसको पीना है, किसको नहीं पीने का है, एंड व्हाट आर द कंडीशंस. यू रिमेंबर द कंडीशंस आल्सो. कॉपर का अपने बॉडी में जरा सा फंक्शनिंग होती है, वो ज्यादा हो जाता है. नहीं, अगर पूरा दिन आप पानी पीते हैं कॉपर का तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकता है. अच्छा. हाँ, अदरवाइज देर इज नो प्रॉब्लम. इनका जो सवाल है कि पूरा दिन कॉपर का पानी नहीं पीना चाहिए. नहीं पीना नहीं. ड्यूरिंग द होल डे अगर आप पूरा दिन को कॉपर का पानी पीते हैं तो दैट में क्रिएट द प्रॉब्लम इन योर बॉडी. सो दिस इज माई सजेशन, ड्रिंक ओनली वंस इन अ डे, दैट इज अर्ली इन द मॉर्निंग. और अगर किसी को सूट नहीं करता है तांबे के बर्तन का पानी,
ही कैन स्टॉप। वो स्टील के बर्तन का भी पानी पी सकता है या मटके का भी पानी पी सकता है। प्लास्टिक बॉटल वो नहीं, प्लास्टिक एज पर एज पॉसिबल यू हैव टू अवॉइड, एज पर एज पॉसिबल। हाँ, कांच का चलेगा, सिरेमिक चलेगा, स्टील चलेगा, पीतल का भी चलेगा, सिल्वर का चलेगा, तांबे का चलेगा, गोल्ड का तो पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज द गोल्ड इज द वेरी यूजफुल। गोल्ड डाल के पी सकते। वैसे 3 मेटल सबसे इंपॉर्टेंट है, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, ये 3। लेकिन हम वी आर द कॉमन मैन, सो वी विल यूज द कॉपर। और थोड़ा सा अगर है, थोड़ा सा लेवल अगर आपका हाई है तो आप सिल्वर भी यूज कर सकते हैं। ये प्लास्टिक जो बिस्लरी बॉटल उसको डायरेक्ट एज पर एज पॉसिबल, व्हाट आई एम टेलिंग यू। अब ट्रैवलिंग में आप है तो वी हैव टू यूज इट, है कि नहीं। वी आर हेल्पलेस। नो, प्लास्टिक का उसके ऊपर साइड इफेक्ट होता है, ऐसा साइंटिस्ट लोगों का भी कहना है। ये जो बॉटल आती है आपकी रिफिल बॉटल बिस्लरी की, वो तो प्लास्टिक की है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना आपको कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वी आर बाउंड टू ड्रिंक द वाटर ऑफ द प्लास्टिक बॉटल। लेकिन एज पर एज पॉसिबल जब आप घर पे है तो आई विल सजेस्ट यू नॉट टू यूज द प्लास्टिक बॉटल वाटर। आप मटके का लीजिए, तांबे के बर्तन का लीजिए, स्टील के बर्तन का लीजिए, या आप सिरेमिक का पानी पी सकते हैं, या और भी कोई भी इसका मेटल का पानी लीजिए। लेकिन एज पर एज पॉसिबल प्लास्टिक का आपको अवॉइड करना है। तो ट्रैवलिंग में वगैरह आप ले सकते हैं। ये हो गया वाटर थेरेपी। ये मेरा खुद का यूज, मतलब आई एम हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 15 years. Before 15 years, I was suffering lot from the constipation problem. लेकिन when I start just 15 years back, this technology, you will not believe that is very useful for me. और इसके बाद भी अगर आपको प्रेशर नहीं आता है तो आफ्टर दैट यू हैव टू डू सम आसन और सम एक्सरसाइज और सम वॉकिंग और थोड़ा सा जॉगिंग आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको प्रेशर ज्यादा आएगा और फिर इजीली आपको पेट साफ हो जाएगा। अभी इसके अंदर दूसरा एक ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूं, फूड ट्रीटमेंट। This is the most important thing. Even if you start the water therapy, it will be useful only when you follow some instructions of the diet. I am not saying that complete instructions you have to follow every day, but as far as possible, if you follow the instructions of the diet, I mean the food, then it is very useful, that water therapy. The first of all, जो भी फूड आप खाते हैं इसमें 3 आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज द फ्रूट, सेकंड इज द वेजिटेबल्स एंड थर्ड इज द सलाद। आपके डाइट में, लंच में और डिनर में मोस्टली ये 3 चीजें होती है, लेकिन फ्रूट्स ऐसी चीज है वो दैट यू आर यूजिंग आइदर बिफोर द लंच और आफ्टर द लंच, before dinner or after dinner. You are not mixing the fruit in your lunch or dinner. Okay? The vegetables and the salad. Salad many people are taking before the lunch or before the dinner. Only in case of the person, when the weight is more, in the, the चर्बी जिसको बोलते हैं, fatness ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को ही, in such people will eat fruits and salad before taking any food. Before lunch and before dinner. The person who want to reduce the weight, they are supposed to eat fruits and the salad before their lunch and dinner. Is it clear? Vegetable तो सब हम लंच या डिनर के साथ ही लेते हैं. There is no option. अब इन तीनों चीजों में one common thing is there. In all these 3 things, fruits, vegetables and salad, one common thing is that you have to eat as far as possible along with the skin. As far as possible I am saying, जहां जहां possible है, you will use the skin of the fruits, you will use the skin of the vegetable as well as salad. जैसा फॉर एग्जाम्पल चमड़ी, ऊपर का जो स्किन होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, छिलका जो होता है वो हमको नहीं निकालने का, एज पर एज पॉसिबल। इट मीन्स दैट वाटर मिलन यू हैव टू रिमूव द स्किन, करेक्ट? वाटर मिलन के केस में तो निकालना पड़ेगा,
पपई के केस में निकालना पड़ेगा, मैंगो के केस में निकालना पड़ेगा।